Hello, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. We are always happy to connect with our guests. We love the time they spend with us. We really get energized when they share their journey with us. People from different professions, different walks of life, the unsung heroes, the celebrated heroes, all of them have shared their journey with us. And it's been an inspiring journey till date. We've spent around about 1.5 years on the International Fab Talks, and we've interviewed around about 751 guests. And today's guest is the 751st guest on the International Fab Talks. So I take the pleasure and the pride to share the name of our guest for today. He's a beautiful soul connected with music. He loves to sing and loves to share the happy journey with us. And he's connected with bringing peace in the world. So let's welcome our celebrity guest. Is none other than Mr. Bilal Yusuf, joining us from the lovely city Srinagar, that is Jammu Kashmir, India. नमस्ते भाई साहब एंड वेलकम टू द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए वक्त निकाल के आए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपके बारे में चंद बातें बोल के हम स्टार्ट करेंगे सेशन. Yes. So, dear friends, I go ahead and share the profiles of all our celebrity guests. I would like to share the profile of our guest in a brief way. As I earlier mentioned, he is a wonderful singer. He loves to sing, and it seems he has begun the passion. He has begun this passion of singing right from childhood. बचपन से ही उनको वो गाने का शौक था, connected with चित्रहार, which we used to have earlier in our times, and connected with the black and white TVs. So I think I resonate with him during that era. Nowadays every channel has music, but in those days it was just one channel that used to give us that beautiful program called as Chitrahar. So sir's journey began from there. That is Bilal Yusuf sir. His journey began from there. I'd like to share more about our celebrity guest. He is an event organizer, a singer, an online music teacher, and he works for an NGO. He works as a receptionist, and the name of that beautiful NGO is Shri Durga Nag Trust. That's really nice, located in Srinagar. तो चलिए सर के जीवन के बारे में जानेंगे, ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं, गाने के बारे में क्या बताना चाहेंगे, और आपका फेवरेट गाना भी गाएंगे हमारे लिए. He will sing a beautiful song for all of you, and he loves Mohammad Rafi. And I think he imitates his voice and tries to sing like him. So we're going to have a beautiful time. Join us, friends, to have a wonderful time with our celebrity guest. He is none other than Bilal Yusuf bhai. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. आप अपने आप को कैसे वर्णन कर पाएंगे? अपने आप को यहाँ पर इस मुकाम पर आते हुए देखकर आपको कैसा लगता है? मैं कौन हूँ? आप ऐसे अपने आप को शेयर कीजिए. हाउ डू यू सी योरसेल्फ टुडे? हु इज द रियल बिलाल यूसुफ टुडे? बहुत खुशी महसूस होती है कि आज हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन हर एक चीज का एक टाइम होता है, फिक्स होता है, कब क्या चीज हो जाए. हमने स्ट्रगल किया, हम सोचते थे कि कब ऐसा मुकाम आए कि हम स्टेज पे गाए, लोग हमें सुने. तो और वही मुकाम है, लोग हमें सुनने के लिए आते हैं. यहाँ इतना हमने इसमें अचीव किया है कि लोग हमारे पास बाहर से आते हैं हमारे साथ स्टेज पे गाने के लिए, और कंट्रीब्यूशन करते हैं, और खुद अपने खर्चे पे आते हैं एक सॉन्ग गाने के लिए हमारे साथ. हम इनके साथ फेस टू फेस गाएंगे थ्रूआउट वर्ल्ड, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया. थ्रूआउट वर्ल्ड आते हैं हमारे पास हमारी इवेंट्स में शामिल होने के लिए खुशी से, और ऑनलाइन भी जुट जाते हैं. मान लीजिए आप ऑनलाइन गाना भेजेंगे तो हम यहाँ पर स्टेज पे उनके साथ गाते हैं. जैसे आपने सुना होगा यूट्यूब पे गाते हैं, कोई फीमेल वॉइस ऑलरेडी बड़ी होती है तो मेल वॉइस में हम गाते हैं. तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए. बहुत खुशी की बात होती है कि हम आपके सामने भी हाजिर हैं. हमको भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि थैंक आप यू. बहुत अच्छा गाते हैं, और आपके बात करने का अंदाज, लोगों से जो रिश्ता बनाने का जो आपका जो तरीका है, बहुत अच्छा है. ये सभी लोग सीखना है, आगे वाले से कैसे बात करना है, कितना इज्जत से बात पेश आना है, वो आप में है. आपका परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हुई है. दैट्स रियली वेरी नाइस. भैया, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आपको ये शौक कब से स्टार्ट हुआ कि मुझे गाना है? आपने मेरे को हमें सेशन से पहले थोड़ा कुछ शेयर कर चुके हैं हमारे साथ, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आप शेयर कीजिए दोबारा. आपके साथ ऐसा कौन सा समय था आपको लगा कि मुझे गाने का शौक है? ऐसा कौन सा वक्त आपको लगा हाँ मुझे भी एक गायक बनना है? Over to you.
सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैं कैसे मुझे लोगों ने परखा कि इसकी आवाज अच्छी है। मैंने जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था, तब यहाँ पर सर्दियों की छुट्टियां होती है। जब सर्दी की छुट्टियां शुरू होती हैं तो लास्ट के दिन ही पढ़ाई होती है। टीचर बोलते हैं कि अगर किसी के पास कुछ कहानी याद है, कुछ गाना याद है, तो मैंने चित्रहार प्रोग्राम में एक दिन पहले एक गाना सुना था, तब देखा था, सॉरी। तो तुम जो मिल गए हो, गा हंसते दीजिए जख्म हमारे को। लिए, गा दीजिए हमारे लिए, हम सब ठीक है, मतलब गा दो। हमारे सभी अब तो मैं दर्शकों के लिए। वो तो स्टार्ट में था तो उतना नहीं गाना आता होगा, लेकिन आज थोड़ा सा गुनगुनाएंगे आपके सामने। जी। तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया। ये एक कश्मीरी पंडित, एक टीचर थी, विजया जी उनका नाम था। मुझे आज पता चला कि वो बहुत अच्छा गाती थी। उन्होंने पूरा गाना फिर मुझे याद कराया, पूरा गाना अंतरा, ये तो मुखड़ा है, इसका अंतरा भी पूरा याद कराया। फिर वो अक्सर मुझे उठवाती थी कि आप ये गाना गाइए, गवाती थी। तो तब ये तो बचपन था। फिर मुझे लगता है कि आज से 20 साल पहले मैंने पहले राइटर बना। मैं, एक अजीब कहानी है, मैं पहले राइटर बना, राइटर, कुछ गीत लिखे मैंने। तो मेरे दोस्त ने कहा हम किसी एक सिंगर से गवाएंगे। हम सिंगर के पास गए, यहाँ का फेमस सिंगर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने वो रफी साहब के गानों की ट्यून पर लिखे थे वो राइटिंग, मान लो कश्मीरी राइटिंग थी, ट्यून गानों की थी, जैसे ट्रैक चलता है। तो हम सिंगर के पास गए। सिंगर ने कहा कि आप इसको थोड़ा ऑडियो में मुझे डबिंग करके दीजिए, थोड़ा डेमी बना के दे दीजिए ताकि मैं गाऊं। मैंने उसको 3 गाने बना के दिए। सिंगर के पास गए, उन्होंने कहा कम से कम 8-9 गाने होने चाहिए, आप फिर से कुछ बनाइए। जब हमने वो कैसेट बनाया 9 गानों का, मैंने अपने दोस्त के पास दिया। मैंने कहा उस सिंगर को आप दे दीजिए, तो वो इसको सुनकर इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मेरा दोस्त एक मैकेनिक था, टीवी मैकेनिक, उसने वो अपने शॉप पे चलाया। उसके पास जो भी आते थे बोलते ये किसने गाया है? बोले कि ये तो मेरा दोस्त है। तो ये बोले इसकी आवाज तो बहुत अच्छी है। मेरा दोस्त मेरे घर आया, बोले कि यार हम खुद ही एल्बम बनाएंगे। मैंने कहा मुझे तो कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, सुर ताल का कुछ पता नहीं है। उसने कहा नहीं हम करेंगे। तो फिर हम एक स्टूडियो में गए, वहां पर मैं गया। तो वहां पर जब मेरे गुरु, अब तो गुरुजी हैं, तब तो नहीं थे, उन्होंने कहा आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले लीजिए। थोड़ी सी ट्रेनिंग मैंने ली, बेसिक ट्रेनिंग, सुर ताल सीखा। वहां पर रफी साहब की वो किताब होती थी गानों की, वो पकड़ के। तो जो मेरे सीनियर थे, 3-4 साल भी सीनियर थे, वो तबला बजाते थे, मैं सिंगिंग करता था। 1 महीने के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे कहा यू हैव एन इंडिविजुअल वॉइस, आप स्टूडियो में जाइए और रिकॉर्डिंग कीजिए, आपके लिए गाना तैयार है। तो फिर मैंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। हालांकि वहां पर पुराने तरीके का, पुराने जमाने का स्टूडियो था। एक बार टेक हो गया, 6 अंतरे का गाना अगर है, अगर आपने लास्ट में कोई मिस्टेक की, फिर से रिटेक। यानी कि आज का जो स्टूडियो है कि अगर आपने एक अंतरा गाया, एक मुखड़ा गाया, फिर चाय वाय पी, फिर से ब्रेक ले लिया, तो ये उससे हमें बहुत सीखने को मिला वहां पर। तो उसके बाद मैंने वहां पर जब प्लेबैक सिंगिंग शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता सीखा भी। तो फिर लेकिन यहाँ पर कश्मीर में जो जो हम सिंगिंग करते हैं, क्लासिकल की सिंगिंग, जो फिल्मी संगीत है, अभी बहुत कम है। अभी थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। यहाँ के जो नौजवान है वो भी अभी इंट्रोड्यूस हो रहे, पसंद करने लगे। अभी शादियों में भी अभी इसी तरह की सिंगिंग चलने शुरू हो गई है, अभी लोग पसंद करने लगे। तो अभी हम अपने इवेंट्स यहाँ करते हैं। टैगोर हॉल यहाँ के फेमस, जहाँ पर बड़े बड़े स्टार परफॉर्म करते हैं, वहां पर हम प्रोग्राम करते हैं अपने इवेंट्स। और बाहर के सिंगर्स आते हैं जो हमारे साथ
स्टार मेकर पे, स्मूल पे हम गाते हैं, वहां पर हमारे बहुत फॉलोवर, बहुत मानने वाले हैं जो हमसे सीखते भी हैं और वही हमारे स्टूडेंट भी हैं। किसी को कोई गाना होता है, मान लीजिए, बहुत अक्सर हम इसमें माने जाते हैं, जो यहाँ कहीं भी आलाप होता है, आलाप बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम आलाप को बहुत ही परफेक्ट देते हैं। ये स्टार मेकर के जो सिंगर्स हैं वो मानते हैं कि हम जो भी आलाप देते हैं वो परफेक्ट होता है। तो क्योंकि हमें बेसिक ट्रेनिंग तो हमने ली हुई है, जिस वजह से हमें उसमें बहुत फायदा हुआ स्टार मेकर इन एप्स पे। हमें बहुत फॉलोवर इसमें आ गए, दैट इज वाई, क्योंकि हमने बहुत इसकी बेसिक ट्रेनिंग ली हुई है। तो इस तरह हम इस संगीत में आ गए, अभी हम इवेंट्स करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्टली बताया किस तरह मैं इस फील्ड में आ गया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी बिलाल साहब, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, आपके घर में क्या कह रहे थे? ठीक है, गाना, आप गाना चुन चुके हैं गाने के लिए अभी, और गाने के रास्ते जा रहे हैं, आई मीन लाइक सिंगर बनना चाहेंगे आप, तो क्या परिवार लोग मान गए जल्दी, मम्मी पापा मान गए, या नहीं नहीं बेटा गाना नहीं चाहिए हमको, गाने का वो शौक नहीं रखना है, पढ़ाई करना, फिर थोड़े प्रेशर, पेरेंट्स जो है प्रेशर करते डालते हैं बच्चों पर, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रेशर डाले आपके पेरेंट्स? नहीं, वो आपके प्रेशर तो नहीं था, अलबत्ता यहाँ पर एक अजीब तरीके का हमें देखना पड़ता है कि लोग इसमें इसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि अलग स्टेट है। मेरी माँ पहले डरती थी, करी ये संगीत है गा, फिर मैं प्लेबैक सिंगिंग करता था, लेकिन मेरा नाम वहां पर नहीं होता था। प्लेबैक सिंगिंग चोरी छुपे में करता था, छुप छुप के प्लेबैक सिंगिंग शुरू किया। फिर एक कॉन्टेस्ट यहाँ पर हुआ, मैं 2-3 एपिसोड्स में आया। तो 2-3 एपिसोड्स में इतना फेमस हुआ कि छोटे छोटे लड़के जो 14-15 साल के, वो मुझे देख रहे थे, आप टीवी पर थे, आप टीवी पर थे। तो मैं घर से एक हफ्ता बाहर नहीं निकला, घर में ही बैठा। कि लोग जहां भी जाता था कि लोग बोलते थे, अरे आप कल टीवी पे थे, आप कब आएंगे फिर से, आपका प्रोग्राम कब आएगा, थोड़ा सा फेमस। लेकिन मैं डर गया। तो फिर मेरी माँ ने मुझे एक हफ्ते के बाद कहा, बोले कि दरवाजे को लात मारो, बाहर निकलो, डरो मत, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, आपके साथ हूँ, जाओ आप गाओ, सिंगिंग करो। ठीक है, मैंने कहा जब माँ है, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ माँ है, फिर मैं कभी नहीं डरा। मैं बाहर निकला। आज अगर मुझे कुतुब मीनार पर कहेंगे कि गाओ, मैंने यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट किया था, एक जगह हिस्सा लिया था, 12,000 लोग थे। लोग डरते हैं कि अरे हम क्या करेंगे, तब भी मैंने, अगर हमें कहेंगे कि कुतुब मीनार पे गाओ, मैं वहां पर भी गाऊंगा, नो फेयर, डर भाग गया। तो बहुत सपोर्ट रहा। बीच में मुझे अपोजिशन भी रही कुछ लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि हमें आगे बढ़ते रहना था। तो आगे बढ़ते रहे भी, माशाल्लाह इवेंट्स करते हैं, लोग हमें मानते हैं, सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने शेयर किया है हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। अभी हम ये पूछना चाहेंगे भैया आपसे, ये तो बहुत पर्सनल बात होगी, कितनी लड़कियां आपकी आवाज सुनकर फिदा हो चुके हैं? क्योंकि अभी अभी आपने गाया है तो मैं तो उसमें खो चुकी थोड़ी देर के लिए। तो आप जब स्टार्ट करे थे सिंगिंग एज अ यंगस्टर, तो कितने सारे लड़कियां आपके पीछे गिरते थे, या दे आपके फैन बन चुके? तो सही वर्ड जो मैं यूज करना चाहती हूँ, सही सही शब्द, आपका फैन कितने सारे लड़कियां बन चुके होंगे, राइट? तो ऐसा कुछ एक इंसिडेंट बता सकते हैं? या सिर्फ नॉट ओनली गर्ल्स, इवन बॉयज, दे आर अट्रैक्टेड टू योर वॉइस, आपकी आवाज सुन के, आपके नेबर्स हो या आपके फ्रेंड्स हो या आसपास रहने वाले लोग? जब मैं इंस्टीट्यूट की बात करूंगा, तो वहां पर अक्सर जो भी फीमेल सिंगर्स थे, वो चाहते थे कि हम रियाज उनको कराए। रियाज मतलब जब रियाज, क्योंकि मेरी जी आवाज तब, मेरे बाद मेरे गुरुजी मेरे बारे में बोलते थे, मेरे सामने नहीं बोलते थे, मेरे बाद जाने के बाद। तो सब चाहते थे कि यही हमें रियाज कराए, कि इस जब ये मैं उनको रियाज कराऊं तो उनकी, लगता था कि उनकी आवाज अच्छी हो जाएगी, और वो चाहते थे कि हम इसके साथ गाए, प्लेबैक सिंगिंग करें। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब एक फीमेल सिंगर को मेरे साथ गाना था, वो तो पहले गा चुके थे, मुझसे सीनियर थी। तो जब पहली रिकॉर्डिंग मेरे साथ थी, तो उसकी मदर स्टूडियो में आई पहली बार, कि आज मेरे साथ रिकॉर्डिंग है, तो हम सुनेंगे कैसी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो चूंकि मुझे कश्मीरी पढ़ना उतना नहीं आता था तब, तो कम से कम 4-5 टेक हो गए मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ मी। वो तो फिर उन्होंने कहा कि अगर फिर से रिटेक हुआ, आई विल नॉट सिंग विद यू, मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी।
मैंने कहा अरे अब क्या होगा, मैंने ऊपर हाथ उठाए, ऊपर वाले से दुआ की कि बस ये टेक हो जाए, और माशाल्लाह वो टेक हो गया और वो गाना बहुत ही अच्छा हुआ। तो इस तरह तब जब लोग चाहते थे कि हम इसके साथ गाए, हालांकि मैंने अपने गुरुजी के साथ भी गाए, बहुत सारे यहाँ पर जो फेमस सिंगर्स हैं उनके साथ भी गाया, लेकिन छुप छुप के अपना नाम जाहिर नहीं किया था। अभी मेरा नाम है, अभी मैं इवेंट्स करता हूँ, खुद ऑर्गेनाइज करता हूँ। लोग चाहते हैं भी, ज्यादा लोग चाहते हैं कि हम इनके साथ गाए। तो ये मैं कह सकता हूँ ज्यादा सिंगिंग की ही तारीफ होती है। हम खुश होते हैं जब हमारी सिंगिंग की तारीफ करते हैं। हालांकि मैं मुझसे यहाँ पर थिएटर भी करवाए गए, मैं सिंगिंग के लिए स्ट्रगल करता था, तो यहाँ पर मुझे लीडिंग रोल में थिएटर करना पड़ा, जो कि मुझे पसंद नहीं था। थिएटर लीडिंग रोल में करना पड़ा, नहीं आपको चांस देंगे लेकिन पहले थिएटर करिए। अ, थिएटर 4 बार, 4-5 बार मैंने किया है, वो भी लीडिंग रोल में। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर अपना फील्ड बनाया। जब अब तो टेक्नोलॉजी है, एप्स हैं, एप्स पे गाने लगे तो मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंच गई। जी। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, अभी आप एक रिसेप्शनिस्ट की तरह आप काम कर रहे हैं एक एनजीओ में, ये किस तरह की काम होता है और आप कब से इस काम स्टार्ट कर चुके हैं और आपको क्या सीखने को मिला है इस काम में? मुझे लगभग 22 साल हो गए, 22 years। ओ वाह। व्हेन आई वाज बैचलर, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बिल्कुल पतला सा एक दुबला पतला लड़का था तब। तो जब मैंने ये जॉब किया, जॉब पे जब लगा, इंटरव्यू हुआ, मेरे बाल तब यहाँ तक थे। जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा आपको हमने रिसेप्शन पे रखा है, लेकिन पीछे से बाल आप थोड़ा काट लीजिए। मैंने काटा, तो फिर अगले दिन उन्होंने फिर से कहा, फिर मैंने पीछे से पूरा जैसे आर्मी की कटाई होती है वैसे ही कर दी। तो इसमें मुझे क्या हुआ, एक तो मुझे जो लोगों से मिलने का मौका मिला, वहां पर हर स्टेट के लोग आते हैं, उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बात करता हूँ, वो पसंद करते हैं हमें। और जो बाहर के लोग हैं उनकी जो थिंकिंग है बहुत ही डिफरेंट है हमसे, यहाँ वो मुझे अच्छी लगती है। 99 जो लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि वो गर्ल थे वो सही है, ये कभी इन मुद्दों पे नहीं पड़ा। सिर्फ अपने काम के साथ में वाबस्ता हूँ, तो लोगों की हेल्प करता हूँ। तो नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों को एकोमोडेशन देते हैं, रात भर उनके साथ रहते हैं। कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, मान लो किसी के पास एकोमोडेशन के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उनको रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं, कहाँ जाना है, कैसे घूमना है, किसकी जगह जाना है। तो ये काम हमारा है। घुमाते भी, जब यहाँ पर मेरे बाहर के जो दोस्त हैं जो मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, सिंगिंग करते हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो एक तो वो सिंगिंग करते हैं, इवेंट करते हैं, और हमारे साथ घूमते भी हैं, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ। तो कश्मीर में जो सेहत अफजा मुकामात हैं, जैसे डल झील है, निशाद गार्डन है, टूलिप गार्डन है, तो उनके साथ हम घूमते, तो उनको अच्छा लगता है एक ऐसा शख्स उनके साथ है जिसके साथ ये क्वालिटी भी है। एक तो वो गाइड भी करते हैं और साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं, इवेंट्स करते हैं, तो ये एक सोने पे सुहागा होता है उनके लिए। यस, यस सर, दैट्स रियली नाइस। तो मैं ये, तो आप एक गाइड की तरह उन लोगों का मदद करते हैं, एम आई राइट? यस, हर एक चीज जो भी इनको चाहिए। जी जी जी, दैट्स रियली लाइक और एक से। हाँ जी, बताइए। जोक आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास एकोमोडेशन नहीं होती है तो अक्सर लोग इंसिस्ट करते हैं कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं, हाँ एक और ऑप्शन है, वो है हमारा घर। अगर हमारे घर में रहना चाहेंगे तो आप आ सकते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारा जो भवन है वो बुक रहता है, तो लोग चाहते हैं कि वहां पर रहे। अब लोगों को तो यकीन नहीं होता है, कभी बोलते हैं कि शायद कोई कमरा मत खाली हो, कुछ कीजिए, ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। तो फिर हमारा डायलॉग रहता है कि आप हमारे घर आ सकते हैं। सच्ची बात, अगर रहना चाहेंगे, अगर उनको वो कंफर्टेबल लगे तो रह सकते हैं। हमारे घर में भी रहे हैं, मेरे जो सिंगर्स यहाँ आते हैं, मेरे छोटे से घर में वो रहे हैं, और उनको यहाँ अच्छा लगता है रहना। अभी भैया हम ये जानना चाहेंगे, अभी आप ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं, सिंगिंग के क्लासेस लेते हैं, जी। तो इसके बारे में हमको थोड़ा स्पष्टता से बताइए, क्योंकि जो सुनने वाले हैं अगर उनको भी शौक है या उनका इच्छा है हम भी ऑनलाइन सिंगिंग सीखें आपसे, तो आप उसके बारे में बताएं तो इट वुड बी रियली नाइस।
सिंगिंग सीखते हैं उसमें बहुत सारे तरीके हैं। स्टार मेकर के अगर बात करेंगे तो जो वहां पर मेरे ज्वाइनर्स हैं वो किस तरह सीखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपको कोई गाना गाना है, ये इतना तो याद है मुझे, है ना, कोई गाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कुछ आलाप्स हैं वो आपको नहीं आते, मैं आपको ऑडियो में वो बताऊंगा ऐसे गाना है। ओ, ये जो चीजें हैं ये उनको नहीं आती, फिर हम उनको सिखाते हैं कि किस तरह वो करेक्ट करेक्शन करके फिर वो गा लेते हैं। दूसरा होता है प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग लेना, जैसे हम सरगम सिखाते हैं, कौन सा सुर कैसा है, सा रे कोमल रे, ये हम सिखाते हैं। फिर हम उनको बताते हैं किस तरह आपकी आवाज अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं सिंगिंग में, सांस कहाँ लेना है कहाँ छोड़ना है, सांस कितना लंबा हो जाएगा कैसे, उसमें उसके लिए क्या रियाज है, वो हम उनको सिखा सकते हैं हारमोनियम के थ्रू। उसमें उसके लिए उनको वीडियो पे आना पड़ता है, तो हम वो उनको गाइड करते हैं क्या क्या आप कैसे आपको रियाज करना है, क्योंकि आवाज बनाने के लिए हमें रियाज जरूरी है, रियाज करना। तो वो हम सिखा सकते हैं बेसिक, किस तरह आपकी आवाज वॉइस क्वालिटी किस तरह आपकी अच्छी हो जाएगी, वो हम सिखा सकते हैं बेसिक में। जी, जी। भैया अभी हम थोड़ा सा मोहम्मद रफी के बारे में बात करेंगे। आपने एक गाना तो गा दिया हमारे लिए स्टार्टिंग में। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, इतने सारे गायक हैं, सिंगर्स हैं, तो आपको क्यों मोहम्मद रफी भाई साहब की आवाज पसंद आई? मैं आपकी हर एक आवाज। की गाना गा लेता हूँ, हाँ कुंदन हाँ। लाल सहगल से लेकर सोनू निगम तक, जितने भी सिंगर है, चाहे फीमेल सिंगर है मेल सिंगर है। अगर मैं लता जी का गाना गाऊंगा आपको लगेगा रफी साहब गा रहे हैं, हम्म। गाऊं? अभी हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके सामने रखेंगे, एक छोटी सी इल्तिजा। आपका सबसे फेवरेट वाला गाना गा दीजिए। आपकी जिंदगी के सबसे फेवरेट वाला गाना आज तक, वो कौन बहुत सी गाना सारे है? हैं, लेकिन फिर मैं एक गाना सुनाऊंगा जिससे मेरे, जब मैंने वो गाना सुना, बहुत छोटा था मैं, 4-5 साल का, मैं अपने बड़े भाई साहब के साथ, तब यहाँ सिनेमा अभी तो बंद है, तब यहाँ पर थिएटर खुले थे, तो वो मैं उनके साथ फिल्म देखने के लिए गया। तो जब इंटरवल हुआ तो हम बैठे थे, तो स्पीकरों से आवाज आ रही थी ऑडियो, तो वो तभी से मेरे गाना वो अंदर चला गया दिल में। गाना चल रहा था, रफी साहब और आशा जी का गाना है, बगावत फिल्म का सॉन्ग है। मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, सलाम सलाम, ओ मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। तेरा पर्दा खूब, तेरा जलवा खूब, क्या पर्दा क्या जलवा, ये दिल तुझसे है मंसूब, मेरे महबूब तुझे सलाम। ये गाना जब स्पीकर चला तो मुझे ये वॉइस बहुत पसंद आई। पता नहीं, तब मैं जानता नहीं था कि कौन सी वॉइस किस सिंगर की है, रफी साहब कौन है, लता जी कौन है, मुकेश साहब कौन है, किशोर दा कौन है। आज अगर कोई गाना चल रहा होगा तो रफी साहब की खांसी होगी बीच में तो मैं पहचान लूंगा ये रफी साहब ने बीच में खांसा है, या किशोर दा का भी होगा तो हम पहचानते हैं। तब इतनी हमें नॉलेज तो नहीं, छोटे बच्चे थे, आहिस्ता आहिस्ता हमें सुनने को मिला, गाने सुने। तो मैं हर एक सिंगर के गाने गाता हूँ, कुंदन लाल सहगल आप जानते होंगे उनको, उनसे लेकर सोनू निगम तक, उदित नारायण, कुमार सानू, आशा भोसले जी, जिनके भी मैं हर एक के गाने गा सकता हूँ। जी, तो बहुत लेकिन बढ़िया। मेरी वॉइस क्वालिटी जो है वो रफी साहब के गानों पर ज्यादा फिट बैठती है, उनकी रेंज जो है रफी साहब की, तो वो मैं परफेक्टली, चाहे कितना ही क्लासिकल सॉन्ग क्यों ना हो, नौशाद साहब के म्यूजिक के बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग होते हैं, तो मैं उनको आसानी से गा सकता हूँ। तो ये जी भैया, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है, तो ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और आप कैसे करते हैं इसको? इवेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं करता हूँ, यहाँ के लोकल जो सिंगर्स हैं मेरे, जो जुड़ चुके हैं, तो हमने ये अरेंज किया है कि, लेकिन हमने स्टार मेकर, आपको पता है एक ऐप है, आज से 7 साल पहले मैंने ऐसे ही वहां पर एक फ्री स्टाइल में बोला कि मैं एक इवेंट करने जा रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर में रफी साहब की बरसी पर। मैंने सोचा देखेंगे क्या होगा, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिला वहां से। वो जो वहाँ के सिंगर्स, उन्होंने कहा हम भी आएंगे कश्मीर आपके साथ गाने के लिए।
तो ये शुरुआत हुई 7 साल पहले, सक्सेसफुल रहा। और यू कांट बिलीव, आप यकीन नहीं करेंगे, जो एंकर थी, यहाँ की एक फेमस एक्ट्रेस थी, उसमें एंकर थी, एंकरिंग कर रही थी। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने उनको कहा कि कैसा लगा आपको प्रोग्राम। उन्होंने कहा आप तो बाहर प्रोग्राम करते होंगे बहुत सारे। मैंने कहा यू कांट बिलीव, हमने आज पहली बार ये इवेंट किया है। बोले "आज पहली बार, ये पहला इवेंट है"। तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि वो हमारा पहला इवेंट था। इतना अच्छा परफॉर्म किया था हमने उस पहले इवेंट में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें बाहर से ही ऑफर आते हैं कि आप इवेंट्स करिए, हम शामिल हो जाएंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। चाहे ऑनलाइन भी लोग जुड़ते हैं बाहर, और उसमें हम लाइव रखते हैं। स्टार मेकर पे हम लाइव रहते हैं, लाइव पे बहुत सारे लोग आते हैं, पसंद करते हैं। कंटिन्यू चाहे हम 6 घंटे करें, वो बिल्कुल 6 घंटे वही रहते हैं, देखते हैं हमारा लाइव। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए एक अप्रिसिएशन है, लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे लाइव पे आते हैं। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, क्या आपने श्रीनगर को पार करके दूसरे स्टेट्स में जा चुके हैं? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में भी इवेंट्स होते रहते हैं, क्या आपको भी बुलाया है, आप शौक से वहां पर जा चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं? बुलाते तो बहुत सारे हैं, हमें ऑफर्स आते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक बार ऑडिशन के लिए गए थे जयपुर, ऑडिशन दिया था। तो उसमें हम कामयाब हुए थे। उन्होंने कहा था कि आप आए, लेकिन थोड़ा सा हमें थोड़ी जॉब की प्रॉब्लम है, छुट्टी बहुत कम मिलती है। उसके लिए थोड़ा सा हम कर रहे हैं, लेकिन हमें हर स्टेट से ऑफर आ रहे हैं, आप गाइए। और खुशी से वो बुला रहे हैं, हर एक स्टेट, चाहे दिल्ली, मुंबई हो, जयपुर हो, हर एक स्टेट से हमें ऑफर आ रहे हैं। सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम है थोड़ी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यही करते हैं, उन्हीं को यहाँ बुलाते हैं। जो हमें वहां बुलाना चाहते हैं, वही यहाँ आते हैं, वो बाय ईयर। और यही से नहीं, इंडिया से नहीं, थ्रू वर्ल्ड, सिंगापुर से हमारे आते हैं, यूएसए से आते हैं सिंगर्स, वो हमारे साथ यहाँ ज्वाइन होते हैं। लेकिन वो हमें बुलाते हैं भी, हम उनको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं हम भी बाहर जाएं, इवेंट्स में शामिल करेंगे, अपने इवेंट वो करेंगे, बुलाएंगे, हमें बुला रहे हैं। तो डेफिनेटली आई विल गो। यस, दैट्स रियली नाइस। अभी भैया हम ये पूछना चाहेंगे, जब हम गाते हैं या कोई गाना गाना चाहते हैं या गायक बनना चाहते हैं, तो कुछ खाने में वो थोड़ा सा परहेज करना है, सब कुछ नहीं खा सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ये मैंने सुना है, कहाँ तक सच है अभी आप बताएंगे हमें? सबसे पहली बात है, स्मोकिंग छोड़ना है और वाइन छोड़नी है। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। मेरे एक सीनियर सीनियर था एक इंस्टीट्यूट में, एक लड़का मुझसे 2-3 साल वो सीनियर था। उसको सुर ताल बिल्कुल मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट, लेकिन जब वो माइक पे गाते थे तो आवाज में खराश पन था उसका। वो बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, वो स्मोकिंग करता था, कभी वो माइक पे नहीं गा सका। बहुत शौक था उसको, ऐसे तो वो अच्छा गाता था, सुर ताल सब कुछ था, लेकिन जब माइक पे सामने, तो परहेज, खाने में कोई परहेज नहीं। बहुत सारे बोलते हैं कि वो नहीं खाना है, खट्टा अ, कुछ नहीं खाना है, मैंने वो सुना है। नहीं खाना, नहीं। जब हम रियाज करेंगे, सिर्फ हमें रियाज करते रहना है, गाते रहना है, अगर चाहे गला खराब ही क्यों ना हो। कभी हमारा गला खराब रहता है, जुकाम खांसी होती है, बोलते हैं अभी अब अभी मत गाओ, लेकिन तब ज्यादा गाना चाहिए। आज हमने प्रैक्टिस में, मेरा दोस्त था, हम प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे ऑफिस में, एक गाना मैंने उनको कहा कि हम गाएंगे। वो डिफिकल्ट गाना माना जाता है। अगर आपको सिंगिंग की नॉलेज होगी, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट सॉन्ग वही है। रफी साहब ने जब उसकी रिकॉर्डिंग की थी, पहली रिकॉर्डिंग में उनको खून आया था गले से, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। वो राग दरबारी पर एक गाना है, ओ दुनिया के रखवाले, उसमें जो लास्ट का वो हाई रेंज, बहुत हाई पिच सॉन्ग है लास्ट में। अगर आपने देखा सुना होगा वो सॉन्ग, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द मेरे, वो गाना है। आपने सुना है वो गाना? आपने तो सुना ही सुना होगा। तो थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा मैं। जी। पहले उसमें भगवान से शुरू होता है, भगवान भगवान भगवान। उसके बाद गाना शुरू होता है, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। इसमें जो अंतर है, लास्ट में रफी साहब ने पूरा तार सप्तक का पूरा लास्ट वाला सुर भी दिया है।
वो बहुत हाई पिच है। तो ये इससे हमें रियाज होता है। जब हम ऐसे गाने गाते हैं लेकिन सुर में गाना है, अगर हमने गलत सुर लगाया तो हमारा गला ही खराब हो जाएगा। हमें अगर पूरी स्केल में, इसमें एक गाने में स्केल होती है, अगर प्रॉपर स्केल में गाएंगे, सुर में गाएंगे, तो यही हमारा रियाज है। उससे हमारा गला बन जाता है, फिर कोई भी गाना क्यों ना हो हम आराम से गा सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी हम एक देशभक्ति का गाना सुनना चाहेंगे, क्या आप कृपया करके हमारे लिए एक अच्छा सा देशभक्ति गाना गा सकेंगे? जरूर गा सकते हैं। बहुत सारे सॉन्ग मैं अक्सर गाता हूँ स्टार मेकर पे। जब भी कोई जो हमारे जो बड़ा दिन होता है, जरूर गा लेते हैं। तो आप कौन सा बताए, आपको कोई गाना मेरे अगर। देश की धरती, सोना उगले हीरे मोती खटखट। ठीक है, गुनगुनाएंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो मेरे देश की धरती आ, आ, ये गाना भी हम गा सकते हैं, ट्रैक पे कभी आपको सुनाएंगे। मैं आपको कभी शेयर करूंगा। बहुत सारे मैंने ऐसे गाने के, जैसे ये गाना है, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, आपके साथ कभी ऐसा नाइंसाफी कभी हुआ है? क्योंकि हमने सुना है जब लोग ये एंटरटेनमेंट फील्ड में जो आते हैं, थोड़े लोगों को साइडलाइन कर देते हैं, तो वो फिल्म एक्टर्स भी रहने दो, कितने बड़े फिल्म एक्टर रहने दो या हीरोइन रहने दो, सिंगर रहने दो, मैंने पढ़ा है, मैंने बस सुना नहीं, पढ़ा है बस ऑनलाइन, कि जी, उनके साथ कभी कभी ऐसे साइडलाइन हो जाता है, नाइंसाफी होती है उनके साथ। तो क्या आपकी जिंदगी में कभी ना कभी आपने ऐसी भी ऐसा नाइंसाफी। लगा, एक तो नाइंसाफी होता होते हुए देखा? है, एक तो होता है कंपटीशन। कंपटीशन तो होता है, किसी को जी लात मार कर आगे बढ़ना, वो तो दूसरी बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे, हमारे साथ भी होता है। लोग चाहते, लोग जेलेसी जिसको बोलते हैं, जेलेसी। मान लीजिए जब मैंने गाना शुरू कर दिया प्लेबैक, मुझसे पहले एक लड़का था, हालांकि उसकी आवाज अलग टाइप की थी, वो भी पहले गाता था प्लेबैक सिंगिंग कर, लेकिन जब गुरु ने, जो गुरु थे, उनको मेरी आवाज ज्यादा अच्छी लगी, तो मुझे ज्यादा गाने मिलने लगे। तो ये तो एक, हर एक फील्ड में ऐसा आता है। आपने देखा होगा, राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, जी है ना। जी। उसके बाद अमिताभ बच्चन आ गए, उनके बदले। वो हर एक का एक वक्त होता है। अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान आ गए। हर एक का अपना अपना वक्त होता है, हमें जगह छोड़नी ही होती है ना। तो इसी तरह जब उसका वक्त था, वो गाने गाता था, चलते थे। जब मैं आया तो मेरे गाने चले, तो थोड़ा सा जेलेसी हुई लोगों को। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें अपना मन साफ रखना है। अगर हमारा मन साफ है, टैलेंट कभी भी नहीं छुपता है। कहीं भी जाओ, जहां पर भी मैं गया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। जब मैंने जयपुर गया, मैं जयपुर में, जयपुर में मुझसे गवाया गया विदाउट म्यूजिक, कम से कम 50 औरतें थी। कोई रिटायर्ड जज, कोई ये थे एडवोकेट, बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे वो। मुझे रखा गया चेयर पे। सबसे पहले कुत्ता भौंकने लगा नीचे से ही। उन्होंने कुत्ते को, कुत्ता भौंक रहा है, मुझे नहीं जानता था। ऐसी तरह चेयर थी, मैं बीच में था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुत्ते को छोड़ा, बोले कि आप खड़े रहना इसी तरह। मैं ऐसे ही खड़ा, मुझे अभी काटेगा, कुत्ता बहुत खतरनाक था। उनने क्या किया, मेरे चेयर के कुत्ते ने राउंड किया, तो लास्ट में उसने थोड़ा सा ऐसे मुझे टांग पे ऐसे टच किया, तो चुप हो गया। फिर उन्होंने कहा, अब ये शांत हो गया, अब कोई प्रॉब्लम, आप, इसने दोस्ती कर ली, अब आप गाना शुरू कीजिए। सबसे पहले मुझे कुत्ते को संभालना पड़ा। फिर जब मैंने गाना गाया, उनने कहा कि हमने आपके गाने सुने हैं स्टार मेकर पे, जो ने मुझे बुलाया था, शी इज एन एडवोकेट हाई कोर्ट में, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, वहां बुलाया था। तो वो उन्हीं के फ्रेंड थे सब। हमने कहा, हमने तो आप हमको, आप आपको हम सुनते हैं हर रोज, अभी विदाउट म्यूजिक आप सुनाइए। तो फिर मैंने वहां पर विदाउट म्यूजिक एक दो गाने सुनाए उनको, तो बहुत अप्रिसिएशन मिला। उनने फिर ये कहा कि अगर आप यहाँ 15 दिन के बाद आएंगे, हर महीने 15 दिन के बाद आना है, आप यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे।
ये उन्होंने मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला तब भी। जी भाई साहब, दैट्स रियली नाइस। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, जब आप गाते हैं या पहले गाते थे या बचपन से गाते आ रहे हैं आप, तो तोहफा भी मिलते हैं, कभी प्राइजेस मिलते हैं, तो सबसे बड़ी यू नो दैट हैप्पी फीलिंग कि भाई मुझे ये प्राइज मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो ऐसा कौन सा तोहफा आपको अच्छा लगा है जो आपको मिली है? देखिए बचपन में तो हमें तोहफे में सिर्फ तारीफ ही मिलती थी। बचपन में तो बहुत छोटे, तब अक्सर जब शादियां होती थी तब हम अक्सर गाते भी थे, डांस करते थे, ज्यादा डांस करना पड़ता था। तब कुछ पैसे वैसे तो नहीं मिलते थे, तब खाने को कुछ अच्छी चीज मिल जाती थी, वो तब था। लेकिन आज के दौर में तो हमें अ, बहुत सारे तोहफे मिलते हैं, गिफ्टिंग मिलती है हमें। अगर आप मैं स्टार मेकर की बात करूंगा, यू कांट बिलीव, आज जब मैंने लाइव किया स्टार मेकर पे, जो गिफ्टिंग हुई कम से कम 10,000 की गिफ्टिंग हुई लोगों ने। वहां रिचार्ज करना पड़ता है स्टार मेकर पे, लोग रिचार्ज करते हैं फिर हमें डायमंड्स देते हैं। लेकिन अगर हम अच्छा गाएंगे, उसके लिए बहुत अच्छी सिंगिंग होनी चाहिए, परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाकर वो देते हैं। वो स्टार मेकर में ही जमा होते हैं, उसमें थोड़ा सा परसेंटेज हमें मिलता है, फिर बिल्कुल बहुत कम। तो वो एक अप्रिसिएशन है हमारे लिए कि लोग हमें गिफ्टिंग करते हैं हमारी सिंगिंग पर। तो ऐसे ये भी एक अप्रिसिएशन है। और बाकी गिफ्ट्स तो मिलते हैं, वो कितना कहेंगे। तो खुशी होती है अगर कोई हमें गिफ्ट करता है सिंगिंग के लिए। अक्सर हम बोलते हैं कि आपको हमारे में कितनी सिंगिंग पसंद है, कि हम पसंद है। जब लोग बोलते हैं कि सिंगिंग पसंद है तब हम खुश होते हैं। अगर कोई बोलता है कि लुक पसंद है, ये चीजें पसंद है, तो मुझे बुरा लगता है। ज्यादातर हम सिंगिंग पर ध्यान देते हैं। एक भैया, अभी हम ये पूछना चाहेंगे श्रीनगर के बारे में। आप श्रीनगर से हैं, तो श्रीनगर में ऐसी कौन सी खास चीज है जो आप बताना चाहेंगे श्रीनगर के बारे में, उसका महत्व? श्रीनगर के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? यहाँ तो हर एक चीज फेमस है। सबसे पहली बात जगह ही है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, हमको ये मालूम है एप्पल्स वहां पे है, सेब एप्पल सब है और यहाँ पर तो शॉल्स। बहुत। मैं एक चीज कहूंगा, बी आर चोपड़ा को आप जानते हैं, जो फिल्म मेकर थे। एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने इतनी फिल्में बनाई हैं कश्मीर में, तो कौन सी जगह आपको अच्छी लगी जहां पर अच्छी लोकेशन है फिल्म बनाने के लिए? उन्होंने जवाब दिया था कि कश्मीर में जहां पर भी आप कैमरा घुमाओ, खुद ब खुद लोकेशन बन जाती है। अब मैं कितनी जगहों का नाम लूं, लेकिन अगर आप मेरी फेवरेट जगह के बारे में पूछेंगे मैं कहाँ ज्यादा जाता था, वह है पहलगाम। पहलगाम से ऊपर एक जगह है पहाड़ी, वहां तो आप जा नहीं पाएंगे, जंगली एरिया है। उसको बोलते हैं लिडरवट, तार सलमान सर। वहां पर हम घूमते थे जब हम टीनेजर थे। वहाँ अच्छी लोकेशन है पिक्चर उठाने के लिए, जो भी हम वीडियोस उठाते हैं। या आजकल तो मोबाइल है, तब मोबाइल नहीं होते थे। तो वो जगह हमें सबसे अच्छी लगती है। खाने के लिए अगर श्रीनगर। कहेंगे, सेब तो है ही। हाँ सेब हाँ। तो यहाँ पर फेमस है। और केसर है, केसर जो है, ये सर। तो वो यहाँ की फेमस है। अखरोट है, बादाम है। लेकिन उसमें भी क्वालिटी में फर्क होता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी अच्छी है, कौन सी। अलग अलग क्वालिटीज में होते हैं वो जो बादाम या अखरोट हैं। खाना, और किस तरह की खाना वहां बनती है? आई मीन, जी, वहां का पर एक अच्छी सी चाय भी मिलती है, कावा, इफ आई एम नॉट कहवा, कहवा जी हाँ, कहवा। जब यहाँ आए थे हमारे साथ बहुत सारे सिंगर्स आए थे स्टार में करके, तो उन्होंने यहाँ से कहवा लिया। मैंने भेजा भी फिर कोरियर में भी बहुत सारों को कि ये कहवा है, उसमें कैसा थोड़ा डालते हैं। यहाँ पर पीते हैं अक्सर कहवा, अच्छे, उससे गला भी अच्छा रहता है। वो जी। यहाँ की फेमस चीज है। जी बताइए, बताइए। तो यहाँ पर वो अक्सर जब सर्दियाँ होती हैं, बर्फ गिरती है, तब लोग वो यूज करते हैं। थोड़ा सा गर्मी रहती है उससे, केसर थोड़ा डाल के। तो मेहमानों के लिए भी वो, जब मेहमान आते हैं, शादियाँ होती है, तब भी वो हम लोगों के लिए हम पेश करते हैं, जो भी मेहमान आते हैं। जी भैया, दैट्स रियली नाइस, बहुत बहुत अच्छा आपने शेयर किया है। तो अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे खुद के बारे में, क्या अच्छा लगता है आपको खुद में? उनमें क्या अच्छा लगेगा, बस हम ये महसूस होता है जब हम गाते हैं, तो लोग जब पसंद करते हैं, भरोसा नहीं होता है कि हम गाते हैं, लेकिन जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो लगता है कि नहीं, हम भी कुछ है,
अब लोग पसंद करने लगे हैं, खुद अपनी वॉइस भी अब हमें पसंद आने लगी है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क किया है। बाकी हमें पसंद लोग पसंद करने चाहिए, हम खुद पसंद करेंगे तो वो कोई बात, लोग हमें पसंद करने चाहिए, लोगों को हमारा जो बिहेवियर है वो पसंद आना चाहिए। सबसे पहली बात है एनकरेज करना। जो मेरे साथ नए नए सिंगर जुड़ते हैं उनमें थोड़ी सी कमियां भी होती हैं सिंगिंग में, लेकिन हम उनको डिस्करेज नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते, उनको हौसला अफजाई करते हैं, तब जाकर वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, आगे चलकर वो भी अच्छा गाने लगते हैं। मैंने बहुत सारों को ब्रेक दिया है, जो नए नए सिंगर गाना चाहते हैं, वो आप मेरे साथ जुड़ के हमारे ग्रुप में आ गए हैं। जो हमारे ग्रुप का नाम है नौशाद म्यूजिक क्लब, जिसके नाम से हम इवेंट्स करते हैं। उसमें अब यहाँ के लोकल सिंगर्स भी जुड़ गए हैं और बाहर के भी हैं, बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। अगर आपके ग्रुप के साथ कोई जोड़ना चाहेंगे या आपके ग्रुप वालों को या गायकों को बुलाना चाहेंगे इवेंट्स के लिए, तो आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे वो लोग? मैं हमारा एक ग्रुप है, स्टार मेकर है। स्टार मेकर पे मैं फ्री स्टाइल करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझे इवेंट करता है, लोग ज्वाइन करते हैं, फिर वो आ जाते हैं, फिर हमसे कांटेक्ट करते हैं। जिनके पास मेरा नंबर नहीं होता है वो भी जुड़ जाते हैं, जो हमारे ग्रुप के नहीं वो भी आ जाते हैं, हमसे कांटेक्ट करके वो आ जाते हैं। इस बार हम प्रोग्राम बहुत तैयार हैं आने के लिए, सिर्फ मेरा ग्रीन सिग्नल देना बाकी है। मैं उनको ग्रीन सिग्नल दूंगा कि आइए, वो आ जाएंगे। अगर आपकी तरह किसी और को बनना है, सिंगर बनना है, थोड़े बच्चे हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं, कम उम्र के बच्चे जो हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनको इजाजत नहीं देते हैं, उनके लिए किस तरह की संदेश आप देना चाहेंगे? पहले बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा गायक भी बनना चाहते हैं, तो उन लोगों, उन जैसे बच्चों के लिए एक अच्छा संदेशा दीजिए, बाद में उनके माता पिताओं के लिए एक अच्छा संदेश। देखिए, ये तो बचपन में ही तय होता है कौन क्या बनेगा। बहुत सारे मैं मान लीजिए मेरे टैलेंट में सिंगिंग था, अगर मुझे कहते कि डॉक्टर बन जाओ, नहीं बन पाते। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके माँ पेरेंट्स बोलते थे कि ये डॉक्टर बनेगा, वो एक्टर बन गया, है ना। हर एक फील्ड अच्छा है, सही है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को जिन्होंने डॉक्टरी छोड़कर एक्टिंग में आ गए। हमें बच्चों का भी सुनना है, जैसे मेरा बेटा एक है, वो जो चाहेगा बनना, मैं उसको कोई फोर्स नहीं करूंगा। हालांकि पहले पहले वो गाता था मेरे साथ, जब वो छोटा था 5-6 साल का, मेरे कंधे पे चढ़ता, मैं रिकॉर्डिंग करता था, वो मेरे कंधे पे चढ़ता था, गाया भी है मेरे साथ। लेकिन आप उसको गाने में कोई थोड़ा सा अब वो इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी अगर वो चाहेगा कुछ भी करना तो मैं उसको उसको फोर्स नहीं करूंगा। ये फील्ड अच्छा है, सिंगिंग फील्ड अच्छा है। हालांकि कश्मीर में तो इसमें अभी ये फील्ड अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर बाहर इसका बहुत अच्छा फील्ड है, सिंगिंग फील्ड भी अच्छा है। तो माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है, बहुत सारे टैलेंट बन सकता है, तो ये उनको सोचना है। जी भैया, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, थोड़े लोग जो है ये जानना चाहेंगे, क्या एक सिंगर बनने से क्या उनका कमाई हो जाता है, या बस एक पैशन जैसा? सिंगिंग इज ओनली अ पैशन, पैशन के साथ थोड़ा थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है, या एक फुल टाइम करियर की तरह बनाना चाहेंगे सिंगिंग को, गाने का? यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट? यस। यस। यहाँ तो अगर मैं यहाँ की बात करूंगा, यहाँ पर सिंगिंग, इस तरह की सिंगिंग पहले, अगर आज मुझे लगता है 1 साल पहले की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता था कि एंटार्क्टिका में हम लेजर बेच रहे हैं। इस तरह की यहाँ किसी को भी इस टाइप की सिंगिंग पता ही नहीं। यहाँ फोक चलता है कश्मीर में, कश्मीरी कश्मीरी फोक चलता है शादियों पर। इस तरह की सिंगिंग अभी किसी को पता नहीं, लेकिन अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है, लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर हम जाएंगे, बाहर इसमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, इसमें कमाई होगी और हमारा प्रोफेशन भी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना है। ऐसा नहीं कि मैं बेसुरा गाऊंगा, हर एक को लगता है कि हम अच्छा गाते हैं, लेकिन फिर जब लोग सुनते हैं, लोग ही तय करेंगे। हम एक गाना गाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर कहेंगे हम सिंगर बन गए, लेकिन स्टेज पे गाना बहुत ही डिफिकल्ट है। स्टेज पे गाना बड़े बड़े सिंगरों को भी मिस्टेक होता है, लेकिन फिर अगली लाइन में हम कैसे ट्रैक पे वापस आएंगे, ये सीखना है। तो इस कमाई के लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना है, फिर जाकर कमाई। एक वक्त ऐसा था जब मैंने स्टार मेकर पे शुरू किया, यू कांट बिलीव, मैं सोचता था कि अगर एक गाने के लिए मुझे सिर्फ 10 रुपए मिलते, कितना, 10 रुपए एक गाने के लिए स्टार मेकर पे, तो 10 गाने में दिन में गाता, तब फैमिली बोलती है यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्या करते हो, गाने गाते हो।
तब मैं सोचता था कि अगर एक गाने का मुझे 10 रुपए मिलता, 10 गाने गाता, 100 रुपए, 3,000 एक महीने के। तब मैं यही सोचा कि काश 3,000 ही मिलते। ठीक है। आज खुदा के फजलो करम से बहुत मिलता है, उतना भी नहीं कहूंगा कि लाखों है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन हैविंग नथिंग। तो कुछ ना कुछ मिलता है और आगे बढ़ते जाते हैं। इस ये फील्ड भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो सीधे पद, क्योंकि वहां पर सुनने वाले होते हैं, उनको म्यूजिक की नॉलेज होती है। अगर हमने कहीं भी गलत सुर लगाया, गलत गाया, तो वो समझेंगे कि अरे ये तो प्रोफेशनल नहीं है। हमें प्रोफेशनल सिंगिंग करनी है उसके लिए। बिल्कुल भी कोई भी, अगर आप कभी लाइव पे आएंगे हमारे, तो अब आपको पता चलेगा कि किस तरीके के हम गाने गाते हैं। तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, विदाउट म्यूजिक आप अभी सुन रहे हैं। जब आप म्यूजिक के साथ सुनेंगे, रिदम के साथ सुनेंगे, तो फिर आप कंपेयर करेंगे कि प्रोफेशनल सिंगिंग क्या है, कितना हार्ड वर्क है। जी जी भैया, दैट्स रियली ट्रू, वेरी ट्रू। आपने जो शेयर किया है बहुत बहुत सत्य है उसमें। अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, इस जन्म में तो आप एक अच्छे से गायक हैं और एक इवेंट मैनेजर भी है, और एक व्हाट यू से, आप वर्क कर रहे हैं वो एनजीओ में 22 साल से कर रहे हैं आप, वो शेयर किया है। हम ये पूछना चाहेंगे, अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म होगा कि नहीं होगा, आई कांट अगर बिलीव। होगा, हम यकीन करेंगे, बस वी जस्ट बिलीव कि अगले मुस्लिम जन्म ऐसा मुस्लिम तो कुछ हो। मुस्लिम नहीं मानते हैं अगला जन्म। तो लेकिन अगर होगा, तो मैं सिंगर ही बनना चाहूंगा। वाह। और मुझे ये बात भी अच्छा लगा, आप बहुत प्रोग्रेसिव थिंकर है कि भाई अगला जन्म ऐसा कुछ नहीं है, नो, ऐसा भी, यू नो, हैव दैट मैं आपको क्लैरिटी। बताऊंगा कि मैंने एक बार एक सपना देखा था, तब मैं इंस्टीट्यूट में था, मुझसे बड़े वो सीनियर थे मेरे साथ। तो मैंने एक बार सपना देखा कि मैं स्टेज पे गा रहा हूँ, पहली कतार पे रफी साहब बैठे हैं सूट पहन के, वो मुझे देख के हंस रहे, मैं गा रहा हूँ, वो हंस रहे हैं। कल मैंने ये सपना अपने जो मेरे वहां पर दोस्त थे, जो मुझसे सीनियर भी थे, मैंने उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने क्रिटिसाइज करा, अरे इसने रफी साहब को देखा है। और हुआ भी वही, वो अभी वही है। उन्होंने कोई भी गाना नहीं गाया, कोई भी उन्होंने कोई भी प्लेबैक सिंगिंग नहीं की है। और मैं अभी इवेंट्स करता हूँ, और वही स्टेज है, मैं स्टेज पे गा रहा हूँ। रफी साहब शायद देखते भी होंगे। तो एक लेडी है मेरी ज्वाइनर, शी इज फ्रॉम यूएसए। ये एक बहुत अप्रिसिएशन की बात है, उन्होंने रफी साहब को देखा है, देन शी वाज ओनली 14 ईयर ओल्ड। 14 साल की थी रफी साहब, किशोरदा मनाडे साहब उनके घर आते थे, रफी साहब के साथ उनकी फोटो भी है तब की। तो मैंने उनको एक बार सवाल किया कि मैं तो गाता हूँ रफी साहब के, आपने रफी साहब को फेस टू फेस देखा है, सुना है, उनके साथ खाया खाया पिया है? वो उनको रफी अंकल बोलती है, नॉट रफी साहब, वो उनको रफी अंकल बोलती है। उनका घराना म्यूजिकल ही है। तो मैंने एक बार उनको कहा कि मैं कहाँ हूँ, अगर मैं भी गाता हूँ मुझे थोड़ा सा बताइए मैं किस तरह की सिंगिंग करता हूँ। तो उन्होंने अप्रिशिएशन के लिए एक बात बताई, उससे मैं और आगे बढ़ा। उन्होंने कहा आपने एक गाना गाया है, वो गाना उन्होंने जावेद, एक यूट्यूबर है, नाम है उनका, मैं उनको नहीं जानता, उनकी आवाज में भी सुना, और सोनू निगम की आवाज में भी सुना है वो गाना, रफी साहब का गाया हुआ। और फिर मैंने जो गाया, उन्होंने कहा कि आपने उन दोनों से बेहतर गाया है। और ये सोचे कि जो प्लेबैक सिंगर है उनसे कंपेयर करना, तो और उन्होंने जिन्होंने रफी साहब को फेस टू फेस देखा है, उनको सुना है, उनके गोद में वो खेली है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने रफी साहब को देखा है, सुना है, फिर भी वो हमारे गानों को पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट भैया। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, अगर भगवान जी आपको मिले, क्या पूछेंगे आप भगवान जी से? ऊपर वाले से मिल गए, मौका मिला मिलने का, सामने सामने आज आमने सामने आ चुके हैं, तो क्या वो तो पूछेंगे? मिलेंगे नहीं, वो मिले हैं। देखिए भगवान या खुदा जो है, वही जी। उन्होंने मुझे दिया है ये सब। यू कॉन्ट बिलीव, 4 घंटे में ही ये पूरा हो गया। हम्म। 4 घंटे पहले दुआ की, आंखों में आंसू थे, मैंने ये दुआ की कि मेरी आवाज बाहर जाए। तब जहां पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था कश्मीर में, ना कोई जानता था ना कुछ था, मैं जिस तरह की सिंगिंग करता हूँ वो यहाँ पर किसी को मालूम भी नहीं कश्मीर में। तब मैंने ऊपर वाले से दुआ की, आंखों में आंसू थे, मैंने कहा कुछ करो, मेरी आवाज को बाहर आने दो। 4 घंटे के बाद वही हुआ जो मैंने चाहा। खुदा बिल्कुल
इंसान के अंदर ही है। अगर हम खुदा से दुआ, ज्यादातर रात को दुआ करो, अगर दिन में दुआ नहीं कर पाओगे आप, रात को दुआ करो, डेफिनेटली खुदा सुनता है। जो भी, अगर आपको सुई भी चाहिए वो खुदा से मांगो, अगले दिन आपके पास होगी। भगवान खुदा हमारे अंदर ही है। मिलेंगे क्या? वो मिले हैं, मिलते हैं हर रोज। और हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जो हमें दिया है इससे आगे भी देगा। वही दुआ करेंगे ना कि हमें और दो, और अच्छे अच्छे लोगों से हमें हमसे मिलाओ, जिनका दिल साफ हो, जो हमारे साथ। और ऊपर वाले का करम है, हमें जो भी मिलते हैं अच्छे लोग ही हमारे साथ मिलते हैं। जब हम अच्छा रहेंगे तो हमारे साथ लोग अच्छे भी रहेंगे, अच्छे लोग ही मिलते हैं। ये मैं मानती हूँ भैया, जो आपने शेयर किया है अभी भैया, कि हमारे अंदर ही भगवान है, खुदा हमारे अंदर हम में बसे हैं। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है कब, कि जब कोई अपना फायदा उठाते हैं, जब बहुत अच्छे हैं रहते हैं लोग, नेक इंसान रहते हैं, सच्चे दिल के रहते हैं, सबके भला जो चाहते हैं, उन्हीं के साथ ऊपर नीचे कभी हो जाता है, कुछ भला बुरा हो जाता है उनके साथ। हमारे तो फादर के लोग, साथ वो हाँ, बहुत ही नेक थे, तो लेकिन फिर भी उनके पीठ पीछे कोई बुराई करता है, सब बोलते हैं कि वो कितने नेक थे, कि हम्म, उन्होंने अच्छा ही किया। हमारे साथ भी होता है, हुआ है। लेकिन फिर लास्ट में उनको जब पता चलता है, वो पछताते हैं कि हमने किन के साथ गलत किया, क्यों किया। एक टाइम होता है। लेकिन फिर अच्छे, ज्यादातर अच्छे लोग ही मुझे, मैं अपनी बात करूंगा, बहुत कम गलत लोग मुझे मिलते हैं, ज्यादातर अच्छे ही लोग मिलते हैं जो मुझे प्यार करते हैं। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। ये बात सुन के मुझे अच्छा लगा है। सही लोग हमारी जिंदगी में आना है, और सही लोगों के साथ हम रिश्ता रखना है, जो खुद के भला भी चाहते हैं और हमारे भला भी चाहते हैं, तो हम राइट। गलत लोगों के साथ अच्छा करेंगे, उनको फील होता है कि अरे हम तो गलत करते हैं, इन्हें तो, ये तो बदले में अच्छा करते हैं। तो फिर वो भी फील होते, नहीं हम गलत नहीं करेंगे इनके साथ, क्यों किया, और पछताते भी है। बिलाल भाई साहब, जन्मदिन पर एक गाना हो जाए, बस ऐसे सबके लिए, जो भी मना रहे हैं दुनिया भर में, आज उनका जन्मदिन है, हमको नहीं मालूम, whoever is celebrating their birthday today, we are requesting our celebrity guest to sing a song, a happy birthday song। तो एक जन्मदिन गाना आप गा दीजिए, हम हमारे सभी दर्शकों के लिए, जो जन्मदिन मना रहे हैं आज, मना रहे हैं आज। लेकिन अगर नाम पता होता, मैं नाम अक्सर लेता हूँ इस गाने में, बहुत मेरे सारे लोग होंगे, एक पर्टिकुलर नाम थोड़ी होगा अभी, बहुत पूरा दुनिया भर में जिसका बर्थडे है आज, जन्मदिन है आज, उनके कोई भी लिए नाम गाने। लेंगे, ठीक है। जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अरसलान, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरसलान मेरे बेटे का नाम है। उनका जन्मदिन था अभी जनवरी में, तो उनको मैंने डेडिकेट किया। इसी तरह हम नाम नाम लेते हैं, अक्सर मुझे गाने के लिए बोलते हैं स्टार मेकर के, जिनका भी जन्मदिन हो, किसी का बेटे का जन्मदिन है, खुद का जन्मदिन, मुझे गाना पड़ता है। आपने ये बात नोटिस की शायद, कि मुझे गाने गाने पड़ते हैं जन्मदिन पर, हर महीने एक या दो बार। आपका गाना बहुत, आई मीन, आप इतना प्यारे से गा चुके हैं अभी, इट इज रियली वेरी नाइस, सुपर, आई रियली एंजॉयड इट, इट वाज थैंक यू। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, सुनने के लिए बहुत बहुत अच्छा था, इट वाज वंडरफुल। यू नो, ऊपर वाले ने आपको अच्छा सा गिफ्ट दे चुके हैं, कि राइट। हम विदाउट म्यूजिक गाते हैं, लेकिन जब हम रिदम पे गाते हैं, ट्रैक पे गाते हैं, कोरोके पे गाते हैं, तो वो अलग ही अनुभव रहता है। तो जी जी जी, इट्स नाइस। बिलाल भैया, अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके सामने रखना चाहेंगे। एक गाना, दुख भरा गाना, दुखी गाना, अभी हम खुशी खुशी का गाना बहुत कुछ गा चुके हैं, एक गाना जो थोड़ा सा गम के साथ, या गम को एक्सप्रेस करते हुए, ऐसा कोई गाना आपको याद है या पसंद है, शेयर कर सकते हैं। लता जी का गाया हुआ गाना है, कि आप कहेंगे रफी साहब के, मैं किशोर दा का भी फैन हूँ, मुकेश साहब के भी गाने गाते हैं। फिलहाल मैं लता जी का गाना गाऊंगा। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती,
हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, कहानी हमारी हकीकत ना होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। न दिल तुमको देते, न मजबूर होते, न दुनिया के दस्तूर होते, कयामत से पहले कयामत ना होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। एक और गाना है, नौशाद साहब का है, म्यूजिक है। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आंखों को, फिर आज हमारी आंखों को एक भूला फसाना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई। ये Excellent. थोड़े दुख भरे, मैंने लता जी के गाने गाए, लेकिन थोड़ा सा रफी साहब का इसमें टच देखने को मिला होगा आपको। तो इसी तरह हम किशोर दा के गाने भी गाते हैं। आप ये नहीं कहें कि किशोर दा के मैंने ज्यादा गाने गाए हैं, तो मुकेश साहब के भी, आशा जी के गाने गाते हैं। जैसे आशा जी का ये गाना है, ये वो उनका बहुत सारे सैड सॉन्ग भी हैं। वो एक गाना था उनका, आज कोई प्यार से, आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, हाय राम मैं तो आगे बढ़ गया, पीछे जमाना रह गया, हाय राम आज कोई प्यार से। भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक प्यार का नगमा, एक प्यार का नगमा का। ठीक है, वो हमारे भारत कुमार जी, पता है आपको, मनोज कुमार जी अब हमारे बीच में हैं, देहांत हो गया, तो उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हर बार उनके, हर वो कोई दिन नहीं होगा जब मैं उनका गाना ना गाऊं। ये गाना आपने फरमाइश की है, गाएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मैंने एक अंतरा भी गाया है इसका, मुखड़ा भी और अंतरा भी। और कोई फरमाइश है आपकी तो? वो दूसरे दुनिया में ले जा चुके हैं मुझे। अच्छा सा आपने गाया है, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक और यू एक थैंक छोटी यू सी वेरी मच। आखिरी फरमाइश है, उसके बाद में बातें स्टार्ट करेंगे, विल शेयर द जर्नी। ये जो ऋतिक रोशन है ना भाई साहब, उनका भी एक पहला वाला फिल्म जो आया था, कहो ना प्यार है, तो वो टाइटल सॉन्ग भी था,
तो वो गाना अगर आप गा सकते हैं हमारे लिए, अभी सभी लोगों के लिए जो अभी अभी नया नया प्यार में उतर के आ चुके हैं, या नया नया रिश्ते में उन लोग प्यार महसूस कर रहे हैं, सच्चा प्यार को, तो कहो ना प्यारे का गाना अगर आप गा सकते हैं एक दो चार लाइन। मैं गा सकता हूँ लेकिन उसका पहला लाइन मुझे याद नहीं है। ये तो टाइटल पता है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। जी भैया, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, जब कोविड सभी को अटैक किया था ना भैया, जब जी। कोविड चल रही थी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे। तो क्या आप जब ये गाने के क्षेत्र में ऑलरेडी ऑफलाइन में थे, आप बहुत कुछ काम कर चुके हैं, जब ये कोविड जब अटैक हुआ था हमको, तो क्या आपको बहुत मौका मिला है ऑनलाइन कनेक्ट होने के लिए? क्या लोग सामने आगे आकर वो स्ट्रेस टेंशन में सुनना चाहेंगे गाना आपसे कनेक्ट करके, ऐसा कुछ वही आप? हुआ। हाँ कोविड हाँ। में हमारे साथ ज्यादा लोग जुड़े, जी क्योंकि जी जी। लोग घरों में बैठे थे। तो वो हमारे गानों को ज्यादा ज्वाइन करने लगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे उसी कोविड में ही जुड़े और आज तक वो जुड़े रहे। अभी वो बिजी भी है लेकिन फिर भी हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि तब हर एक के पास वक्त था। लोग घरों में बैठे थे, ऐप पे गाते थे, अलग अलग ऐप्स पे लोग जाने लगे, और स्टार मेकर लोगों ने ज्वाइन किया। खासकर मैं कहूंगा कि जो इसमें लेडीज, ज्यादा लोग इसमें लेडीज हैं, क्योंकि वो हाउस वाइफ हैं, बहुत सारी जॉब जो करती थी वो घर में बैठे तो करते क्या, वो सिंगिंग करने लगे। तो उसमें ज्यादा लोग हमसे जुड़े, जो भी अभी भी वो जुड़े हुए हैं, हालांकि बिजी रह गए हैं। तो थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले उनके पास टाइम ही टाइम था, सिर्फ सिंगिंग करते थे। अब वो सिर्फ एक या दो सॉन्ग ही गा पाते हैं एक हफ्ते में। पहले वो दिन में कम से कम 50 गाने भी गाते थे। भैया, आपने इससे पहले हमारे साथ शेयर किया है चित्रहार के बारे में। तो आपने कहा हमारे घर में एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहती थी, और हाँ आप लोग देखते थे। क्या आपको परमिशन मिल जाता, व्हाट यू से, इजाजत देखने के लिए? घर में बड़े लोग रहते हैं, मुझे देखना है चित्रहार। हमारे घर में तो टीवी नहीं था, हम लोग बाजू वाले के घर में, नेबर्स के घर में जाके सुनते थे, वो भी परमिशन लेना है। हमारे घर वालों से परमिशन मिल जाती, लेकिन उनके घर में परमिशन नहीं मिलती अंदर जाने के लिए। हम खिड़की के बाहर ठहर के, उनके जो वहां ठहर के वो गाना वाना जो भी है, आधा घंटा था ना, वो ठहर के देख के घर आ जाते हैं हम लोग। या हमको घर में परमिशन नहीं मिलती लेकिन वहां परमिशन मिला, तो ऐसा बहुत सफर होते थे। बहुत दिनों के बाद में हमारे घर में छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमारे डैडी ने लाया था। तो आपका इसका संबंध कैसा था वो टाइम जब ये टीवी तभी इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे भारत देश में, और सभी के घरों में, छोटे मैं तो थोड़े से तब घरों में? हाँ जी। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरी हम्म। 5 बहनें हैं, 5 सिस्टर्स हैं, 2 भाई हैं हम। राज तो उन्हीं का था, वही फिल्में देखते थे, हमें उनके मुताबिक ही चलना पड़ता, क्योंकि मैं तब, जब हमने टीवी लाया, मुझे लगता है मैं 1 या 2 साल का रहा हूँगा, जब हमारे वालिद साहब ने टीवी लाया था, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो पहले पहले बहनें चलाती थी, अपना प्रोग्राम देखती, तब तो 1 या 2 चैनल ही हुआ करती थी, तो वही चलाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ा हुआ तो वो फिल्में देखते थे, संडे को एक फिल्म होती थी, इतवार को, जी तो जी जी। वो देखते थे, तो मैं भी देखता था। तो तब तो ये नहीं था कि देखना, हमारे फादर भी मदर भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं थी, कोई भी मनाही नहीं थी कि देखने की। मेरे फादर और मदर ने कभी भी मुझे किसी भी चीज से मना नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी नहीं कहा। उनको पता था कि ये गलत नहीं करेंगे, वाह, सिर्फ कहते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है कभी नहीं कहा। ये अच्छी बात वो है। अच्छा। हम हर फील्ड में हमें मुझे एनकरेज किया, कभी भी मना नहीं किया किसी भी चीज। जी जी जी। इट्स रियली वेरी नाइस। भैया, अभी आप हमारे लिए एक संदेशा देना है, जो लोग गा सकते हैं लेकिन झिझक रहे हैं, मैं उसको सही तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगी। थोड़े लोग जो है ना भैया, अच्छा गाते हैं लेकिन शर्माते हैं, स्टेज फियर है उन, लोग क्या कहेंगे, लोगों के डर से वो लोग बाहर नहीं आके गाते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं, लेकिन जब अकेले हैं अच्छा गुनगुनाते हैं। मैंने सुना है बहुत सारे लोग है, उनके पास हुनर है, लेकिन वो दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, या आगे आके पब्लिक के सामने गाने के लिए वो थोड़ा सा डरते हैं, या तो ऐसे डर को हमेशा के लिए कैसे मारना है?
खत्म करना है, क्योंकि आपने वो कर मैं चुके हैं अपने जिंदगी में। मैं कर चुका हूँ, मैं बहुत सारों का डर भगा चुका हूँ। मेरे साथ जी जो जी लोग, मैं आपको सच्ची कहूंगा, हमारे साथ जहाँ हम प्रोग्राम करते हैं, हॉल है, वहाँ का एक एम्प्लॉय, उन्होंने कहा कि मैं भी गाऊंगा। वो ऑडियंस में थे, उन्होंने कहा मैं गाना चाहता हूँ। वो स्टेज पे आए, मैंने देखा कि उनके हाथ कांप रहे हैं ऐसे। अब क्या करें, मोबाइल उनका, उनको गाना है लेकिन वो कांप रहे हैं। फिर मैंने उनको कहा कि अरे मुझे देखो, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मुझे गाना नहीं आता है, हम यहाँ सब सीखते हैं। तो पहले मैंने उनको खुद, उन्हें कहा आप मेरे साथ कुछ गाओ। मैंने उनके साथ गाया, मान लो मैंने 2 लाइनें गाई, उसने 2 लाइनें गाई, तो उनका डर भाग गया। अभी वो स्टेज पे सीधे दौड़ कर आते हैं, गाते हैं, ठीक है। फिर उनने मुझे एक मैसेज किया, बोले कि अगर आप मुझे 5 साल पहले मिलते तो शायद मैं मुंबई में होता। मैंने कहा चलिए, अभी तेरा है दुरुस्त है, अभी मैं आपसे मिला। अभी वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे जो मेरे साथ भी यहाँ के लोकल सिंगर जुड़े हैं, पहले वो डरते थे स्टेज पे आने, लेकिन मैंने उनको उस तरह से ट्रीट किया, उनका डर भाग गया। अभी वो आराम से गाते हैं। अगर उनको 20,000 लोगों के सामने कहेंगे गाने के लिए, वो कभी डरेंगे नहीं। जी जी भैया, दैट्स रियली नाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर हमने ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछा है जो आप अभी तक शेयर करना चाहेंगे अपनी तरफ से, या मैं कुछ मिस कर चुकी हूँ, तो आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर समथिंग फ्रॉम योर एंड। और क्या शेयर करेंगे, बस अभी इस फील्ड में हम आ चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे स्टेट में भी कोशिश करेंगे। और कभी हम आपसे जो हमारी जो सिंगिंग है आपके साथ शेयर करेंगे, जो हमारे इवेंट्स की वीडियोस हैं, आप उनको देखें। अभी तो आपने विदाउट म्यूजिक सुना मुझे, जब आप म्यूजिक के साथ सुनेंगे तो एक अलग ही एक्सपेरिमेंट रहता है। म्यूजिक के साथ, ट्रैक के साथ जब सुनते हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी कितनी चीजें, सिंगिंग में बहुत सारी चीजें हैं। टाइमिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है, रिदम पे गाना होता है, आवाज मैटर नहीं करती है। हमारे में कहा जाता है कि बेसुरा चलेगा, बेताला नहीं चलेगा। अगर आपको सुर में कुछ डगमगा, लेकिन अगर आपने रिदम पे नहीं गाया तो वो कोई मायने नहीं रखता आपकी सिंगिंग में, इस तरह के। तो अगर आपको कुछ और सवाल पूछना है, वैसे हमने बचपन से लेकर जहां तक बुढ़ापे तक सवाल आपने पूछ लिए, तो अगर कुछ सवाल आपका रह गया तो आप पूछ सकते हैं जी कुछ भी। जी जी जी। एक छोटी सी राउंड है हमारा, कॉल्ड एज द रैपिड फायर राउंड, जहां पर आपको आंसर एक ही शब्द में देना है। ठीक जी। है भैया, एक छोटी सी राउंड होगी। तो आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उसके बारे में। तो पहली जी। वाली प्रश्न ये है, आपको फल खाना पसंद है या समोसा? अगर आपके सामने फल रखे या समोसा रखे, आप क्या खाना चाहेंगे? फल। दैट्स रियली नाइस। द सेकंड क्वेश्चन इज, जब आप गाते हैं तो कौन सा दिन के कौन से समय आपको अच्छा लगता है गाने के लिए? थोड़े लोग सुबह सुबह में, थोड़े लोग अपने हिसाब से, एक टाइमिंग रहता है उनका गाने के लिए। तो आप जब गाते हैं तो दिन का कौन सा समय वो बहुत अच्छा लगता है? इवनिंग, इवनिंग के टाइम। जी जी भैया, अभी अब देखिए, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो गुजर चुका है पास्ट, अभी जो हो रही है प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर अपना ध्यान देते हैं, चीज के लिए देते हैं? आई मीन द पास्ट, द प्रेजेंट और द फ्यूचर। अभी मेरा प्रेजेंट है, प्रेजेंट अच्छा चल रहा है, प्रेजेंट पे मैं ध्यान देता हूँ, तभी फ्यूचर आएगा। जी 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 पास्ट तो चला गया, कोई फायदा नहीं है सोचने में, लेकिन अभी अगर इसके बारे में हम सोचेंगे तभी हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। जी जी। तो पास्ट ये तो बहुत। गया, बताइए। पास्ट गया, उससे उसको सोचने से कोई फायदा होगा नहीं। अभी जो प्रेजेंट है, जो हाथ में है, वो ले लो, और उसी से हमारा फ्यूचर भी बनेगा। जी जी और हमें कंपटीशन अपने आप से करना है, ना कि लोगों से। हमने सोचना है कि हमने ये किया, हमें खुद को पीछे छोड़ना है, खुद को, ना कि लोगों को। किसी से कंपटीशन नहीं करना है। क्या आपको कभी कभी, आप हमेशा सोशलाइज करते रहते हैं, आपके प्रोग्राम्स मैंने देखा है, यू आर वेरी वेरी सोशलाइजिंग, लोगों से मिलते हैं, स्टेज फियर नहीं है, आप गाते हैं, दूसरे लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं, वो आपका काम है, आप लोगों से मिलकर आपका काम होती है जो भी है, यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल। हम ये पूछना चाहेंगे, अगर सोशलाइजिंग और मी टाइम, खुद के लिए वक्त थोड़ा सा निकाल के खुद के साथ स्पेंड करे, आपको चॉइस दिए दिए, आप सोशलाइजिंग करना चाहेंगे या खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहेंगे? क्या चुनेंगे आप पहले? पहले मैं खुद के साथ टाइम चाहूंगा, तभी तो बाकी काम कर सकते हैं।
अभी श्रीनगर में इतना सारा ठंड भी होता है ना, आई थिंक 6 मंथ्स कंप्लीटली कोल्ड सीजन रहती है, ठंड काल। बिल्कुल फ्रीजर बन जाता है कश्मीर, बिल्कुल फ्रीजर। 6 महीने के लिए बनती है ऐसा? लगभग 2 महीने, बिल्कुल 2 महीने ऐसा रहता है कि अगर हम पानी का गिलास बाहर रखें कि वो सुबह तक बर्फ बन जाता है। डल झील जो है वो जम जाती है, उसके ऊपर गाड़ी चल चल सकती है, इतना बन जाता है। 2 महीने दिसंबर और जनवरी का बहुत ही वो पीक पर रहता है, बिल्कुल फ्रीजर बन जाता है कश्मीर। उसके बाद थोड़ा कम रहता है। अगर कोई कश्मीर या जम्मू कश्मीर या श्रीनगर वहां पर जो आना चाहेंगे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, कौन सा महीना सही है आने के लिए? टूरिस्ट सोचिए हम आना चाहेंगे हमारे फैमिली के साथ, तो सही वक्त। अप्रैल के बाद आप कहीं भी आ सकते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक ये अगर आपको बर्फ, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आते हैं वो स्नोफॉल देखना चाहते हैं, हम्म। वो तब उनको दिसंबर में ही आना चाहिए अगर उनको स्नोफॉल देखना है। बहुत सारे ऐसे हैं कि हम स्नोफॉल देखना चाहते हैं कैसे होती है, तो तब उनको वो अपने डिपेंड है कि वो देखना क्या चाहते हैं। अगर आप झरने देखना चाहते हैं, झरने ना उसमें आप पैर डालना चाहते हैं, तब आपको, आपके लिए वो सही रहेगा मई या जून का महीना ठीक रहेगा। मई और जून में आप प्लानिंग बनाइए, तब यहाँ का मौसम अच्छा रहता है, खुशगवार रहता है। अपने हिसाब से एक सुंदर सा दिन कैसी होनी चाहिए आपके लिए? एक शब्द में बताइए। क्या एक क्या सुंदर सा दिन। सुन एक सुंदर। एक देखिए, हम सभी के लिए 24 घंटे ने दिया है, ऊपर वाले ने सभी के लिए वही 24 घंटे दिए हैं। तो आपकी जिंदगी में ये 24 घंटे कैसा रहना है? एक शब्द में बताइए बस। देखिए सब एक उम्मीद पर शब्द ही में, एक ही सब। शब्द में। थोड़ा मुश्किल सा है। गाना या सुकून या खाना, बातचीत करना, एनीवन। बातचीत करना, लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो दिन सुकून से निकल, टाइम का पता ही नहीं चलता है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ बातें करते हैं ना, तो जब हम जुड़ जाते हैं तो दिन का पता नहीं चलता है, अच्छे से दिन निकल जाता है। और दिन भर हम वही करते हैं, ये मैं अच्छे सही कह रहा हूँ। दिन भर हम बातें ही करते रहते हैं लोगों के साथ, जो हमारे कोलीग रहते हैं उनके साथ गपशप करना, बातें करना, हंसी मजाक करना, तो दिन अच्छे से निकल जाता है। जी जी जी। बातें करते करते थोड़े से लोग क्या करते हैं ना भैया, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी का बुराई कर देते हैं। ये तो नहीं होना है। अगर ऐसा कुछ बातों बातों में किसी को हम भला बुरा कह दिए तो वी विल बी इन द ट्रैप्ड इन द लॉ। जो सरकार है वो आके हमें लॉस एंड कुछ अभी चल रही है ऐसा कुछ, मुंबई में ऐसा नहीं कुछ। नहीं, वैसा ही भी हमें मजाक हद तक करना है, जी जहाँ वेरी। तक किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। मजाक हम भी करते हैं, हंसी मजाक, लेकिन हंसने के लिए, हंसना भी जरूरी है। जब हम ठहाके लगाकर हंसते हैं तो ये एक, वो भी एक तरह से एक एक्सरसाइज है हमारे लिए, वेरी। चेहरे के लिए। चेहरे के लिए हंसना बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, खुद ही हंसी मजाक के उतना ही करना है, लिमिट में रहना है। जब भी हम हंसी मजाक करेंगे कि अपने लिमिट में, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, ये हमें देखना है, हद तक रहना है। वेरी ट्रू। ये अच्छा संदेशा है सभी के लिए। मजाक मजाक में किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है या किसी नुकसान नहीं को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, पहुंचाना है। लिमिट में रहना है, हंसी मजाक करो बस लिमिट में। जी जी। भैया आपके फेवरेट टीचर कौन है जब आप पढ़ते थे स्कूल में? कोई ऐसा सर या मैडम जी का नाम आपको याद है? आपने इससे पहले स्टार्टिंग में किसी का नाम बताया आपने, तो हाँ, इसके जो अलावा और कोई है? उनका नाम विजया मैडम था, वो तो मुझे हीरो हीरो तब कहकर बुलाती थी, हालांकि तब मैं 4th क्लास में था। तो मेरे कभी कभी बाल ठीक करती थी, एक बेटे की तरह वो मुझे मानती थी तब। तो उनको मैं अभी तो शायद मुझे पहचान भी नहीं लेगी, और मैं भी उनको नहीं पहचान पाऊंगा, वो कैसे, बहुत बहुत पहले अरसे की बात है। तो वो मुझे तब पसंद थे। और हमारे एक उर्दू टीचर हुआ करती थी, एक उनका नाम था शफीका मैडम, उनको वो मुझे अच्छी लगती थी, अच्छी तरह से पढ़ाती थी, ज्यादा डांटती भी नहीं थी, पीटती भी नहीं थी, सिर्फ गुस्सा ही करती थी ये। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे हम आपसे भैया, जब आपको पनिशमेंट मिलता था क्लास में, जब आपको पनिश करते थे, क्या आप अपने टीचर के लिए कोई गाना गा दिए और फिर मैडम को, टीचर को खुश कर दिया? ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं, गाने के लिए तो कभी नहीं पीटा, उस पे तो अप्रिसिएशन मिला। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि हम जब टीचर कभी नोटबुक चेक करती थी तो वो बोलती थी कि
किसी को बोलते थे कि अगर कोई शोर करेगा तो उनका रोल नंबर लिखना बोर्ड पे। अक्सर शोर करने पर थोड़ा एक दो बार पिटने से बच गए, इन्होंने ही बचाया। एक बार क्या हुआ, इन्होंने विजय मैडम जो नोटबुक चेक कर रही थी, मैं तो लास्ट वाले बेंच पे था, तो इन्होंने क्या कहा, एक लड़की को उठाया कि इनको आप जी तो ना आप रोल नंबर लिखो, जो शोर करेंगे कि उनको पीट, लेकिन मेरा भी रोल नंबर था, लेकिन जब हाँ उन्हें लास्ट में रूम में हमें देखा तो सबको बोला कि सबको बैठो, आप भी हो। लास्ट रो वाले सब बैठ गए, बच गए मेरी वजह से। हमें ज्यादा मार नहीं पड़ी है इस वजह से कि ये काम नहीं किया, गाना गाया। सिर्फ कभी कभी शरारत करते थे तब डांट पड़ती थी, पनिशमेंट मिलती थी। जी। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, आप किस तरह के बदलाव देखना चाहेंगे भारत में? बहुत बदलाव देख चुके हैं हमारे आसपास, हमें हमारे इर्द गिर्द बहुत बदलाव हो चुका है। आपके नजरिए से किस तरह की बदलाव अभी भी बाकी है? फिर मैं बाकी जो पूरे भारत की बात तो नहीं करूंगा, अपने वादी कश्मीर की बात करूंगा। यहाँ भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ करप्शन पीक पर था, वो खत्म हो गया, वो अच्छी बात है। करप्शन बिल्कुल पीक पर था, वो खत्म हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर करने बाकी है। अभी यहाँ सड़कें बन रही है, हमारे जो वादी कश्मीर में नए नए ये स्मार्ट सिटी बनती जा रहे हैं। जो हमारे जो लेडीज हैं, बस फेयर उनको फ्री कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं, तभी थोड़ा टाइम लगेगा। बाहर के मुकाबले में हमने बहुत कुछ देखा, यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता। हमने बहुत सारा यहाँ देखा है, बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज ऑफ हालात खराब थे यहाँ पर। 90 से यहाँ हालात खराब है, लेकिन अगर वो ना होता तो कश्मीर आज स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा बढ़िया होता। लेकिन कुछ अभी आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं, अभी हालात भी सुधर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी अच्छा कर रहे हैं कश्मीर के लिए। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमसे बहुत फॉरवर्ड है बाहर की स्टेट्स, लेकिन अभी हम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं वहां तक। अच्छी बात है, जी। बदलाव आ रहा है डेफिनेटली। जी भैया, आखिरी में हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, आपके मन में पहले वाले 3 अच्छे बातें क्या है? वो एक तोहफा की तरह हमारे हमारे लिए दे दीजिए। व्हाट आर द फर्स्ट 3 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड? सबसे पहली बात खुशी है। उसके बाद अगर आपके साथ कोई गलत करेगा, उनको माफी देनी चाहिए। तो लास्ट में माफी होती है, क्योंकि हमें माफी करना पड़ता है। और हमें सबसे और एक बात है, बिहेवियर। बिहेवियर ही हमारा जो है, हमारा खानदान का पता चलता है। जो हमारा बिहेवियर है उसी से पता चलता है कि हम किस जात से हैं, हमारी कम्युनिटी कैसी है, कैसी हो सकती है। जो हमारा बिहेवियर है वही हमें रिप्रेजेंट करता है कि हम किस कल्चर से हैं, हम किस कम्युनिटी के हैं, है ना। दैट इज फैक्ट। जैसा हमारा बिहेवियर है वही हमें पता चलता है कि हम किस खानदान से हैं। बाकी हम कुछ भी पहने, लेकिन अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो कोई मायने नहीं रखता है लोगों के सामने। हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहो, ताकि वो भी अच्छे लोग आपको मिलेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट की तरह रहना है, शुड बी ट्रांसपेरेंट, कोई झूठ नहीं। उस लोग आपके साथ खुद जुड़ जाएंगे, आपको प्यार देंगे। लेकिन अगर हमने क्या खाया, लोगों को पता होना चाहिए कि आज क्या खाया, क्या किया, क्या नहीं किया। अगर हम कुछ भी छुपाएंगे तो लोगों को वो पसंद नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। हम जैसे लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोग जानते हैं आपके ज्यादा फॉलोवर हैं, तो उनको आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है ना, वो क्या आपके बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ है क्या नहीं है। बिल्कुल सच बोलना चाहिए, क्या है आपके बारे में, आपकी जिंदगी क्या है। अगर हमने कुछ छुपाया, तो अगर फिर उनको पता चलता है कि ये तो झूठ था, तो सोचो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने कहा खुशी, माफी और अपना बिहेवियर, राइट? बिहेवियर। हाउ डू वी बिहेव? थैंक यू वेरी मच। आखिरी में अगर आप एक अच्छा सा गाना सुनाना चाहेंगे हमारे लिए, आपके तरफ से, आपके खुशी से, you'd love to sing a song for all of our viewers, a nice song, a Thanksgiving song from you, or a tribute to all the viewers of the International Fab Talks from Bilal Yusuf जी। हर चेहरा
यहाँ चांद तो हर जर्रा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जर्रा सितारा। ये वादी कश्मीर है, जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद, हर चेहरा यहाँ चांद। यहाँ के लोग भी बहुत ही मेहमान नवाजे हैं। जब आप आएंगे तभी पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलता है। जब यहाँ लोग आते हैं तब पता चलता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रिटर्न टिकट मत करिएगा। मैं उनसे बोलता हूँ जो यहाँ आने वाले होते हैं, क्योंकि फिर मन नहीं करता है यहाँ से जाने का। लोग बोलते हैं कि एक दिन 2 दिन के लिए आएंगे, फिर वो चाहते हैं कि एक हफ्ता रुक के। तो फिर उनको पता चलता है कि कश्मीर क्या है, कश्मीरियत क्या है। जब वो यहाँ आते हैं तब तक उनको पता, बहुत सारे लोग डरते भी हैं, अरे कि वो होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन जब वो हमसे मिलते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि नहीं, असल में क्या चीज है, जो हम सुनते हैं वो नहीं है। फेस टू फेस जो होता है वही हकीकत है। ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हैं वही सच है। ठीक है, और कुछ सुनना चाहेंगे आप? माँ के बारे में एक लास्ट गाना, माँ के बारे में, हाँ, क्योंकि भैया अभी जस्ट विद इन 10 to 15 days वी हैव लाइक आई थिंक मदर्स डे। मई महीने में, मई का दूसरा संडे जो आती है, सेकंड संडे ऑफ मई इज सेलिब्रेटेड एज मदर्स डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जी। माँ के लिए, सभी माए के लिए एक अच्छा सा गाना गा दीजिए as a tribute to all the mothers. So dear friends, I have requested Mr. Bilal Yusuf to sing a song for all the mothers across the world. A nice song. Join us, friends, to have a wonderful time with our celebrity guest. He's none other than Mr. Bilal Yusuf, joining us all the way from Srinagar, Jammu Kashmir, India. माँ के लिए मैं जब भी गाना गाता हूँ, ये तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ इस गाने में। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये सच बात, इसमें अगर आप अंत में सुनेंगे बिल्कुल परफेक्ट, हर एक के लिए वो फिट बैठते हैं। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई। ये मैं ट्रैक डाल रहा हूँ, जी 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 लेकिन मेरे पास माइक नहीं, मैं विदाउट माइक गा रहा हूँ। जी 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 जी, you've done a wonderful job. You've done a अपना great. नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। Excellent, excellent, माँ beautiful. के So लिए that's really माँ nice. के लिए बहुत सारे गाने हैं।
अक्सर मैं वुमेन्स डे पे भी गाने गाता हूँ। लता जी का गाना है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। अक्सर मैं ये गाना गाता हूँ, उसमें पूरा औरत के लिए है। औरत क्या, औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बीवी भी है। तो ये इस गाने में बोला गया है। हमें गाना पड़ता है हर एक, हम जो भी कभी बड़ा दिन होता है, कभी 26 जनवरी, हमें गाने ही पड़ते हैं उसमें। या ऐसे माँ का दिन होता है, हम गा सकते हैं, क्योंकि हमें ऐप्स पे गाते हैं, हमें एक्टिव रहना पड़ता है। आखिरी में एक लास्ट रिक्वेस्ट है भैया, द लास्ट वन, टू ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे जो है उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज दीजिए, संदेशा दीजिए कि अपने माँ बाप का कदर करें। जी, अगर ये बात अपने माँ बाप अच्छे हैं, ऐसा कोई उनके उनमें कुछ बुराई नहीं है, समझो लाइक शराब करना या सिगरेट फूंकना या बच्चों को मारना, खाना बना नहीं खिलाना, अच्छे माँ बाप को टुकरा देते हैं थोड़े से बच्चे, पूरा ले लेते हैं, हड़प लेते हैं उनके माँ बाप से और उनको टुकरा देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए एक अच्छा संदेशा दीजिए, जहां पर वो लोग समझ पाते हैं कि हमारे माँ बाप जो है अपने हैं, हम उनका ख्याल करना है जब उनका उम्र हो जाती है। सबसे पहली बात, हमें पहले पेरेंट्स को ध्यान रखना है। जो मैं भी फादर हूँ, लेकिन मैं भी बच्चा रह चुका हूँ। मेरे भी माँ फादर और मदर थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे लिए बहुत कुछ करते थे। ठीक है, बदले में हमने भी उनके लिए बहुत, जितना हमसे बन पाया। मेरे फादर ने मेरे गोद में आखिरी सांस ली। ठीक है, वो रुखसत हो गए, लेकिन सेटिस्फाई रहे। तो सबसे पहले हमें बच्चों के लिए सोचना है। हमें उनको ज्यादा उन पर ज्यादा सख्ती नहीं करनी है, बच्चों पर उतनी भी सख्ती नहीं, और प्यार से समझाना है। मेरा भी एक बेटा है, हालांकि मेरी जो मिसेज हैं वो उन पर थोड़ी सख्ती करती हैं बच्चे पर, लेकिन मैं प्यार से समझाता हूँ और वो समझ जाते हैं। बच्चे बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। सख्ती से बच्चे ज्यादा बिगड़ जाते हैं। जितनी भी सख्ती करेंगे, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो हमें करना चाहिए, खेल खेल में ही बच्चे को समझाना है, सिखाना है, खेलते खेलते पढ़ाना है। तो बच्चों पे सख्ती नहीं करनी है। तो बच्चों को भी फिर प्यार बढ़ता है माँ बाप के लिए। जितना हम उनसे प्यार करेंगे, तो बदले में वो हमें प्यार ही करेंगे। और मैं यही एडवाइस करता हूँ, आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। वो उसी में हमारी भलाई है, और ऊपर चलकर ज्यादातर इसी पे हमें पकड़ होगी। हम मानते हैं कि अगर हम कितनी भी अच्छाई क्यों ना करें, कितना ही दान क्यों ना करें, कितने ही हम पूजा पाठ करें या नमाजें पढ़े, अगर हमने माँ बाप को अ, अ, कोई इज्जतें दी, तंग किया, तो कोई फायदा नहीं है। वहां पर हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक ही मिलेगा। चाहे कितना ही हम दान पुण्य करें, कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे पहला प्रेफरेंस हमें अपने पेरेंट्स के लिए देखना है। ठीक है। एक्सीलेंट भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने वक्त हमारे साथ शेयर किया है, अच्छी बातें सुनाई, अच्छे अच्छे गाना हमें सुनाए, दैट्स रियली नाइस। आपकी जिंदगी के बारे में बताए, अपने काम के बारे में बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आना है और आप हमारे साथ थोड़े से वक्त बिता कर जाना है। वी विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल योर एंडेवर्स। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल गेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। So, dear friends, with this, we come to an end now to the International Fab Talks for today. Do share this video with the right kind of people, those who may be interested in singing or would love to learn to sing or be connected with our celebrity guest for the good work that he does with regard to music and song. You can get connected with him. We'll share his details in the description when we share this video. And if you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Take care of your family members. Take care of your parents. Give them the love and respect that they deserve. If you'd love to connect with our celebrity guest, we'll share his details in the description when we share this video. Don't forget to follow your passion and live life to the fullest. Concentrate on making a beautiful world. First, focus on your family. Give them all the love and care that you have, and then you can bloom in the right way. You can then focus on other things. If you have a happy family and if you have people around you who love you back in the right way, that's a beautiful way to live on this planet, right? So stay safe, stay connected. Don't forget to even protect the environment. Make this world a better place.
Stay connected and stay blessed. Signing off now from the International Fab Talks.